Welcome back to next video, class 10 mathematics, chapter 2 polynomials. In last video, I have told you about types of polynomial. There were linear polynomials, quadratic polynomials, cubic polynomials, and biquadratic polynomials. Today I will take some of the basic concepts of polynomials. First of all, I am taking how to solve linear polynomials or how to find zero of it. Remember, linear polynomial has only one zero. In previous video, I have told you about the standard form of linear polynomial in one variable. Look at this form. Here, ax plus b. X is variable. A and b are coefficients or any real numbers. I am taking a polynomial of this type 3x plus 5. Here value of a is 3 and b is 5. How to solve it? In 8th, 7th classes, you have solved such type of equations not polynomials, in which you have equated it with 0, जिसमें आपने इसे 0 के बराबर रखा. सचमुच में जब इस पॉलिनोमियल को हम 0 बना देते हैं तो x की वो वैल्यू जो इस पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना दे, वही इसका सॉल्यूशन है, उसी को हम 0 बोलते हैं. इसके सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले 3x plus 5 को हम 0 के बराबर रखें. इस 5 को इस तरफ लेके आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू -5. अब 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, यू विल गेट x इज इक्वल टू -5/3. दिस -5/3 is a zero of polynomial, or it is value of x that makes the polynomial 0. Simply in standard form, value of x is here given by -b/a. It was negative of constant term upon coefficient of x. आप इस तरह के और कई क्वेश्चंस ऐसे ले सकते हैं जिसमें x की वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए. यहाँ x की वैल्यू आप अलग अलग रख के देख सकते हैं. केवल और केवल x की एक वैल्यू -5/3 इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है. इसी वजह से इस पॉलिनोमियल की 0 -5/3 है. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. नेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. हाउ टू नेम इट? प्रीवियस क्लासेस में जैसे हमने देखा था, हम बहुत सारी अपने फिगर्स के नाम रखते थे. जस्ट टेक ए ट्रायंगल, तो हम इस ट्रायंगल का एक नाम रख लेते थे. लेट्स से दिस ट्रायंगल इज ABC. तो यहां हम इसका नामकरण करते थे, नाम लिखते थे ट्रायंगल ABC. तीनों वर्टिसेस कैपिटल लिख के हम इस ट्रायंगल का नाम लिखते थे. इस ट्रायंगल ABC से हम समझते हैं कि हमें एक फिगर दी हुई है जिसका नाम हमने ये रखा हुआ है. ठीक उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 3x plus 5 एक पॉलिनोमियल ली थी जो वेरिएबल x में थी. यहां वेरिएबल था, सो पॉलिनोमियल्स का नाम हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में दिस px is equal to 3x plus 5. Here px is the name of your polynomial. It is a polynomial. P stands for polynomial in variable x. The full meaning is a polynomial in variable x. Here, if I take a quadratic polynomial, let it be in y, the variable is y here. तो मैंने यहां x को y में बदल दिया, यानी हमारी पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल y में है.
हमारी पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल y में है, इस वजह से हम इसका नाम रखते हैं पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y माइनस 6। ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हम यहां और थोड़ी सी पावर इंक्रीज कर लेते हैं। ए पॉलिनोमियल pt, पॉलिनोमियल p इन वेरिएबल t, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम px, py, pt ही बोलेंगे। फुल मीनिंग होगा ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t which is equal to 6t cube plus 12t square plus 6t minus 10. Here we have 4 terms and degree is 3. That's why it is cubic polynomial. Just we are taking p, or sometimes in different mathematics books this notation is used, fx. In division algorithm you might have learnt about your Euclid division lemma. Here this is qx, sorry, I am taking some other notation. Just px is equal to a polynomial which we want to divide, px, by which we divide it is generally denoted by gx, and the quotient is qx and remainder will be rx. These are simply polynomials. These are name of polynomials. So do not forget, this is a polynomial in variable x. This is another polynomial in variable x. This is third polynomial in variable x. All these polynomials are in same variable. So यदि आपको सेम वेरिएबल के डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लिखनी है तो आपको p, q, r, s, f जो भी नोटेशंस यूज करने हैं वो आप कर सकते हैं। सिंपली आप इतने से नाम हम जनरली देखते हैं, fx, f of x भी बोलते हैं, px, qx, rx, gx. These are general form. Generally we take such type of polynomials, fx, px, qx, rx, gx. If you want to change our variable, then you have to change this x, fy, py, qy, ry, gy. तो जब आप सेम वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स डिफरेंट लिखना चाहते हैं तो एफ, पी, क्यू, आर, जी, सामने वाला पार्ट बदलिए। ब्रैकेट के अंदर का मतलब है कि वेरिएबल्स आप बदल रहे हैं। इसके लिए आप अपने एग्जाम्पल्स बुक के देख सकते हैं, मैं होमवर्क आपको दूंगा तब और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ a polynomial at a given value of variable. I am repeating this polynomial. If a polynomial px in variable x is given by 3x plus 5, then what will be its value when x is equal to 1? जब x बराबर 1 वैल्यू होगी तो इसका हम वैल्यू टोटल देखते हैं क्या है। यहां इसके लिए हम क्या करते हैं, px में x की वैल्यू की जगह 1 रखेंगे। दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px व्हेन x इज इक्वल टू 1। इस नोटेशन को समझने की कोशिश करिए। मैं p ब्रैकेट के अंदर 1 जो लिख रहा हूं इसका मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px व्हेन वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x इज इक्वल टू 1, इट विल गिव यू 3 into 1 plus 5. So your value will be equal to 8.
What's about 2? When x is equal to 2, so P2 will be equal to 3 into 2 plus 5. It will give you 11. What's about this value? Let's see. By putting it, px में x की जगह -5/3 रखिए, तो हमारे पास अपनी पॉलिनोमियल में 3 इंटू -5/3 प्लस 5 रहेगा। 3 से 3 कैंसल आउट होगा, -5 प्लस 5 विल बिकम 0। Look at this. In previous example, I have taken 0 of polynomial. Value of x which makes the total polynomial equal to 0 is called 0 of polynomial. So 0 of this polynomial here is x is equal to -5/3. Can you put the value x is equal to 0 here? If yes, then I am finding P0 is equal to 3 multiplied by 0 plus 5, which will give you answer 5. This is case of linear polynomial. In quadratic polynomial, you can substitute value of y as 2, 3, 0, -1/5. I am taking 1 for you. I am finding P2 when y is equal to 2. जब y की वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी टोटल? 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 -7 इंटू 2 प्लस 6. It will be, sorry, -6. It's -6. Here it will be 20, -14 and -6, which will give you again a value of 0. Means this is 0 of this polynomial. Find out value of polynomial py when your values are 3, 0 and -1/5. Try it out yourself. Next, when t is equal to 1, t is equal to -1, I am giving you one value. When I substitute t is equal to -1, जब t की वैल्यू -1 रखें तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि -1 की पावर कभी +1 कभी -1 होती है। 6 इंटू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 12 इंटू -1 प्लस 6. You will get positive sign here. -1 का स्क्वायर +1. So 6 into 1, 6. Plus 12 -1 की मल्टीप्लीकेशन -12 plus 6. Again you will get 0. Find out whether these are zeros of this polynomial or not. If yes, try to substitute value 3 for t. t की जगह 3 वैल्यू रख दीजिए और पता लगाइए। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे t is equal to -1 is a 0 of this polynomial. नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. अभी आपने देखा था हमारा pt t बराबर -1 पर उसकी वैल्यू 0 हो गई थी. यहां मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास अलग अलग इसके जीरोज आ जाएं और बाद में हम देखेंगे कि पावर के साथ, डिग्री के साथ नंबर ऑफ जीरोज का क्या रिलेशन रहता है. अभी यहां बेसिकली मैं x की कुछ वैल्यूज रखता हूं. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -5.
मैं जानबूझ के वैल्यू सिलेक्टेड ले रहा हूं ताकि मैं आपको इनकी जीरोज दिखा पाऊं। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1। P1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 10, द वैल्यू विल बी 17। व्हाट्स अबाउट P2? P2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10। You will get 4 plus 14 plus 10, which will give you 28. What is value of x is equal to minus 2? When we substitute x is equal to minus 2, it's minus 2 square plus 7 multiplied by minus 2 plus 10. Here you will get positive 4 minus 2 का square of any integer, whether it is negative or positive, is always positive 4. Here you will get negative 14 and plus 10. I think it will become 0. So especially when I take x is equal to minus 2, the polynomial becomes 0. Take this case here, the value becomes 0. If the value becomes 0, then I can say x is equal to minus 2 is a 0 of 0 को हम कभी कभी सॉल्यूशन लिखते हैं, इक्वेशंस में नए रूट्स का नाम देने लगते हैं, और मैं अब px लिखूंगा। यहां देखो, ये नाम लिखने का मुझे फायदा है कि पहले 3 टर्म या 4 टर्म अब लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपली इसका नाम लिख दीजिए। इसी वजह से सॉर्ट करने के लिए हम इन पॉलिनोमियल्स के नाम रखते हैं। अब आप आगे की 2 वैल्यूज और देख सकते हैं। 5 रख के देखिए, -5 रख के देखिए, आपको इनमें से एक 0 और मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। हियर व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री इज 1. Degree means highest power of variable. Here is the power of x is 1 only. Degree 1. So हम यहाँ रिलेशन देख रहे थे कि हमारे पास x की वैल्यू, ये पिछला ही एग्जांपल में ले रहा हूं, मेरी पॉलिनोमियल सेम है। यहाँ हमारे पास इसकी 0 आई थी और वो सिंगल आई थी, यूनिक थी, -5/3. So if I have linear polynomial, you can have only 1 0 for it. In case of the polynomial is quadratic, when your polynomial is quadratic, you will get at least 2 zeros, highest degree. डिग्री यहां कितनी है? 2. So number of zeros is 2. एक बात आप हमेशा और याद रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरोज 2, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो x की वैल्यू आपको केवल, y की वैल्यू आपको दोनों ही सेम मिल जाएं। जब y की वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे इसकी 0 एक ही है, ओवरलैपिंग है। सो यहां हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट, इन केस ऑफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is 2, is at most 2.
अधिकतम 2 हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो कि दोनों ही जीरोज सेम आ जाएं। यहां आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पीजेड, देखो पीजेड लिखने का मुझे फायदा है, अदरवाइज ये 4 टर्म्स मुझे लिखनी पड़ती। डिग्री ऑफ pz is 3, highest power of z is 3 here, that's why degree of polynomial is 3. So number of zeros at most, number of zeros at most is 3. Let's take another topic. How to form polynomials with given zeros. पहले हमें वैल्यू फॉर्म में ये वेरिएबल्स मिले हैं। मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी 0 5/3 हो, या पिछले वाली यदि मैं करना चाहूं तो -5/3। तो यहां हम कोशिश क्या करते हैं, पहले इसे इक्वेशन फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। उस इक्वेशन फॉर्म को बाद में पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करेंगे। यहां आपको मिलता है x is equal to -5/3. If I multiply both side by 3, you will get 3x is equal to -5. Adding 5 on both side or taking 5 on RHS. इस 5 को यदि हम RHS में ले जाएं, ये 5 हम LHS में ले जाएं तो हमारे पास ये रह जाएगा 3x + 5 is equal to 0. अब इस 0 को यदि हम एलिमिनेट कर दें तो 3x + 5 will be our polynomial. आप 0 फॉर्म से इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में ऐसे ला सकते हैं। यदि ये 0 आप रखते हैं, इट विल बी एन इक्वेशन। हियर वी आर गिवन 2 zeros। एक मेथड और भी आएगा आगे इसी तरह से। अभी मैं ये सिंपल तरीका ही लूं, यदि x is equal to -5 is a 0, then I can say x + 5 and x + 2 are factors of the polynomial. मैंने 0 फॉर्म से इन्हें फैक्टर फॉर्म में बदल लिया और इन दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो हमारी पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड होगी, जिसकी जीरोज x बराबर -5 और x बराबर -2 होगा। मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करिए और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x + 2 + 5 इंटू x + 2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे it will be x square plus 2x plus 5x plus 25। नेक्स्ट जब हम लेंगे तो लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, x square plus 7x plus 25। it will be our desired polynomial. How to form a polynomial with 3 zeros or 4 zeros? You can take the same pattern. I am taking these zeros in factor form first. मैं कोशिश कर रहा हूं, x - 1 एक फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का, x + 2 दूसरा फैक्टर होगा। देखिएगा मैं 2 का निशान बदल रहा हूं क्योंकि 2 उधर 0 के दूसरी तरफ चला गया, और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x - 10। सबसे पहले आप इनमें से किसी 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद तीसरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यदि आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन आती हो, अभी मैंने पीछे करके दिखाई थी, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, इट विल बी x square plus x minus 2। इसे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें x - 10 से तो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगी जिसकी जीरोज 3 होंगी और ये डिजायर्ड जीरोज ये आएंगी। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से आपको आ जानी चाहिए, 8वें से आप लगे हुए हैं ऐसे कामों में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यहां मल्टीप्लीकेशन आपकी हुई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। हाईएस्ट पावर x की पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चुकी, स्क्वायर टर्म 2 है तो दोनों का सम हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर। एक पावर वाली दो टर्म है माइनस 2x और माइनस 10x, ऐड होने के बाद माइनस 12x हुआ और प्लस 20 कांस्टेंट टर्म अकेली। हमारे पास ये पॉलिनोमियल जिसका नाम मैं px रखूं, तो ये पॉलिनोमियल की जीरोज यदि हम निकालेंगे आगे फर्दर तो वो जीरोज ये आएंगे, यानी जीरोज से आपने पॉलिनोमियल फॉर्म बदलनी है और पॉलिनोमियल फॉर्म को फिर जीरोज फॉर्म में बदल के आना है। ये एक तरह रिवर्स प्रोसेस भी आपको करना पड़ेगा जब ये पॉलिनोमियल आपको दे दी जाए और आप उसके फैक्टर्स करके उसके जीरोज निकाल लें। मैं अगले रिलेशन में आता हूं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यहां हम देखते हैं इसकी जीरोज क्या है। ये इक्वेशन जब हम लेते हैं तो हमारे पास प्रीवियस जो सॉल्व्ड एग्जांपल मेरा था ये वाला, इसी को मैंने आगे समझाने के लिए यूज किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 25, सॉरी इट्स 10। तो यहां मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये मैं करेक्शन करता हूं। इट विल बी 2, हियर यू विल गेट 10 एंड 10। सो यहां मैं सेम पॉलिनोमियल लिए हुए हूं। आपने जीरोज क्या देखी थी? हमारी जीरोज इसमें थी प्रीवियसली x इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड आउट जीरोज ये मैं बाद में आपको सिखा रहा हूं। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। हमारे पास ये दो वैल्यूज थी जीरोज की, तो ये दोनों में ये 7 कहां से आता है? वास्तव में यदि हम इन दोनों का सम करें, सम ऑफ जीरोज, तो हमारे पास आता है -7। यदि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की प्रोडक्ट हमारे पास -2 -5 की प्रोडक्ट हो जाती है पॉजिटिव 10। तो हम यहां देखते हैं कि हमारी जो ये फॉर्म लिखी हुई है, वास्तव में एक्स स्क्वायर के साथ यहां कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है। ये 7 कहां से आ सकता है यदि हम इसका नेगेटिव कर दें? सो माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो? दिस इज सी। Simply I write it, if my sum is S is equal to S for sum minus 7, P for product 10, then your required polynomial will be, if sum is -7 and product is 10, so हम इसे x square minus S into x plus P फॉर्म में लिखेंगे। S आपके पास यहां पॉजिटिव है, यदि s is equal to -7 है, then minus s will be equal to +7. So substitute s and p here. You will take x square plus 7x, 7 का निशान कैसे बदला ध्यान से देखिए, और plus 10. So there is a relation between zeros, zeros की सम यहां है और zeros की प्रोडक्ट यहां है। एक एग्जांपल और लेके मैं ये क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां यहां कोएफिशिएंट एक की बजाय दूसरे और आने लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
How to form quadratic polynomial when sum and product of zeros are given? मैंने इसी को कंटिन्यू फिर किया है. Form a quadratic polynomial with sum of its zeros as -5/3 and product of zeros as 7/2. सो पिछली उसमें मैंने सेम आपके पास ये अप्लाई किया था, यानी x के कोफिशिएंट के रूप में हम सम ऑफ जीरोज का नेगेटिव रखते हैं. सम ऑफ जीरोज हमारे पास s है, ये इसका नेगेटिव करेंगे तो +5/3 आ जाएगा. मैं यहाँ x² प्लस 5/3x, आई एम टेकिंग दिस x here, and plus product of zeros. So product of zeros is given 7/2. You have to make your fractional coefficients as whole numbers or integers. So I will multiply this by 6. It will be 6x². जब आप यहां 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 5 की जगह अपीयर होगा प्लस 10x. जब आप 6 से यहां मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 21. सो इट विल बी अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. 9th क्लास में 8th क्लास में आपने सिंपल इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे. 9th क्लास तक आपका ग्राफ लीनियर आता था, एक लाइन बनती थी. ग्राफ नंबर 4 को देखें, एक लाइन बनती थी. ये लाइन कोई जरूरी नहीं थी कि एक्स एक्सिस को काटे. कभी कभी आपकी ये लाइन पैरेलल हो जाती थी एक्स एक्सिस के, तो इसमें एक्स की वैल्यू आती ही नहीं थी. एक्स कोऑर्डिनेट को ये कहीं काटता ही नहीं था. जब ये लाइन हो जाती तो हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था. यदि अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, सो वी हैव 1 0, यानी इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स की जो वैल्यू 2 दी हुई है ये इस पॉलिनोमियल की 0 है. आई एम टेकिंग हियर 0 1 2. एक्स इज इक्वल टू 2. सो जहां जितनी बार एक्स एक्सिस को ये काटेगा नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होंगी. वाई एक्सिस कटता है कि नहीं कटता है, कितनी बार कटता है, वो आपने कोई ध्यान नहीं देना. ग्राफ नंबर 1 में हम देखते हैं कि आपकी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है. एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक पॉइंट पर काटता है, और कहां काटता है, एक्स की वैल्यू -1. एक्स इज इक्वल टू -1. दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितनी हुई, 1. यहां नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई, 1. लेट्स टेक ग्राफ नंबर 2. सच टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड पैराबोला. इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, डाउनवर्ड पैराबोला है. सो एक्स एक्सिस को ये 2 जगह काटता है. यहां एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता है. एक काटता है x बराबर -1 पर, और एक जगह काटता है x बराबर +2 पर. सो वी हैव 2 जीरोज हियर. यहां हमारी 2 जीरोज हैं, यानी ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है. जब हम तीसरे ग्राफ में आते हैं, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है. ये ग्राफ जब हमारे पास मिला तो हम इसे x बराबर -1, मैं यहां +1 ले रहा हूं, हालांकि एग्जैक्ट नहीं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2. वी हैव 3 zeros here. If I have 3 zeros, by multiplying their factors I can form cubic polynomial. So this is a graph of cubic polynomial.
ये हमारा कैसा था? लीनियर। ये कैसा था? क्वाड्रेटिक। ये क्यूबिक। लीनियर, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था जिसमें x की वैल्यू सिर्फ एक हम निकाल पाते हैं। अगला 5वां नंबर हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। यहां a की जगह 2 पॉइंट दिए हुए हैं। x इज इक्वल टू 1, इसकी 2 बार जीरोज हैं, एक बार ऊपर से नीचे आते हुए और एक बार नीचे से ऊपर जाते हुए, यानी मैक्सिमम वैल्यू है 1 और ये रिपीट हो रही है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला फॉर्म में आता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे, एक जगह काटे, ना काटे। सो ग्राफ ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक का है और जीरोज ओवरलैपिंग है, x इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ बना के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक आध, उसमें और क्लियर हो जाएगा। 6th ग्राफ में देखें, यहां x को, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ 4 जगह काटता है। सो इट हैज 4 सॉल्यूशंस। 4 सॉल्यूशंस। मुझे लगता है कि अब आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और यदि आपको ये समझ आए तो अपने कुछ क्वेश्चंस जो मैंने इसमें छोड़े हैं वो आप पर्सनल अपने होमवर्क कॉपी में कर सकते हैं। और यदि कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे से संपर्क करिए टेलीफोनिकली या स्कूल प्लेटफॉर्म पे, जहां भी आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं का मैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बच्चे रिस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं अभी तक, बड़ी एक अच्छी सी बात है कि आप काफी पॉजिटिव हैं। मैं आज ये रिस्पॉन्स देख रहा था तो कुछ वीडियोस के जो व्यूअरशिप है वो 450 के आसपास पहुंच गई है, जबकि बच्चे आपके 80 के करीब आपकी क्लास में हैं। तो व्यूज आपके आ रहे हैं वीडियोस में, ऑलमोस्ट रीच्ड अप टू 450। सो कोशिश कर रहे हैं आप, रिपीटेडली उन्हें देख रहे हैं। जितनी बार देखें उतना ज्यादा बढ़िया समझ आएगा। कुछ और समझने के लिए मेरे से संपर्क करते रहिए और अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, इंडोर रहिए। Thank you very much for watching this video.